Welcome to Bodhyana Digital. Today again we are here with a new set of video on aldehydes and ketones. This lecture is very important so far as CBSE is concerned as well as NEET and JEE. Okay, so today we will discuss aldehyde, ketones and carboxylic acids, and here what we have to study oxidation by using mild oxidizing agents. So as you can see it here, there are different aldehydes and ketones depicted here. So this one is formaldehyde, this is acetaldehyde, this is benzaldehyde, this is again ketone, dimethyl ketone. Okay. So what we have to study right now is how we are going to distinguish between aldehydes and ketones, whether that is aromatic aldehydes, whether that is aliphatic aldehydes, or whether it is aromatic aldehydes, aromatic ketones. These all things we are going to discuss. So what we do here basically, so here just a minute. Now what we have to study here basically is there are different sets of mild oxidizing agents, that is Tollens reagent, Fehling solution, and one more is iodoform test. So we will be starting with Tollens reagent. So here it's given, see it here, it is Tollens reagent So first of all, what actually this Tollens reagent is? So this Tollens reagent is, so it is an equimolar mixture of ammonium hydroxide and silver nitrate. Silver nitrate, commonly known as ammoniacal silver nitrate solution. Ammoniacal silver nitrate solution. So here you can see the picture of what happens when an aldehyde is treated with a Tollens reagent. So what will happen? So when we treat aldehydes with ammoniacal silver nitrate solution, so what happens here? So a silver mirror is being formed and it looks like this one. So this test, this Tollens reagent is used
to distinguish between all aldehydes and ketones. Means all aldehydes that is aliphatic as well as aliphatic as well as aromatic gives this test. Gives this test. Okay, so what is this one? It is basically an equimolar mixture of ammonium hydroxide and silver nitrate, commonly known as ammoniacal silver nitrate solution. So इसमें होता क्या है कि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, एलिफेटिक हों चाहे एरोमेटिक हों, ये टेस्ट देंगे, लेकिन कीटोन्स जो हैं ये टेस्ट नहीं देंगे. Ketone is not going to give positive test with Tollens reagent. Ketones do not give this टेस्ट. तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी नीड टू टेस्ट, व्हाट हैपेंस हियर? सो वी ऐड Tollens reagent to the organic compound which we want to test, and it is warmed. So what happens if we get a silver mirror deposition on the test tube like this? So what we confirm? We confirm that the particular organic compound is what? A aldehyde, is an aldehyde, and ketones will not give this test. So let's discuss this one. So let's discuss this test with the help of suitable chemical reactions, and after that we will move to the next part. So ketone is not going to give this test. Keep this thing in mind. So what we do, what happens here? An organic compound to be tested is taken in a test tube. Add Tollens reagent to the organic compound to be tested, and is warmed.
if white precipitate of silver gets deposited on the test tube, then it confirms that the given organic compound is an aldehyde. Let's discuss the chemical reaction. This is RCHO plus AgNH3 whole twice OH. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर जो है हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCOO NH4 प्लस सिल्वर प्लस NH3 प्लस H2O। ये जो सिल्वर है यही जो है हमें क्या देता है, तो वाइट प्रिसिपिटेट देता है, जिसके कारण जो है आपका टेस्ट ट्यूब जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो है रिएक्शन हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये जब वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, इससे जो है हम कंफर्म करेंगे कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, तो एल्डिहाइड्स है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार लेट्स सी दिस रिएक्शन। RCHO, CHO is what? It is an aldehyde group. This one is Tollens reagent, ammoniacal silver nitrate solution. This is ammonium salt of carboxylic acids. This is what? Ammonium salt of carboxylic acids. This is silver, this is ammonia and this is what? Water. ठीक है, इसको बैलेंस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको। 2 ठीक है, 2 Ag, तो यहाँ पे भी 2 Ag। नाइट्रोजन कितना है, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ जो है हम 3 लगा देते हैं, देखिए बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन 3 3 9 9 9 9 प्लस 4 13 14 15 3 2 6 6 2 12 3 2 6 6 2 12 13 14 15। ठीक, बैलेंस्ड है।
तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हमें जो है पता करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए जो है कौन सा होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है। अगर हमें इसमें ये पता करना है, और ये टेस्ट किस लिए होता है, तो इस टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसी के लिए ये टेस्ट होता है। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है, उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लिए। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो टोलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे। अगर वाइट प्रिसिपिटेट किसका, सिल्वर का अगर फॉर्म हो जाता है, तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड्स है। तो इसका जो है केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, RCHO 2AgNH3 होल ट्वाइस OH गिव्स RCONH4 प्लस 2Ag प्लस 3NH3 प्लस H2O। ठीक है, एक और हम एग्जांपल करते हैं। लेट्स सी, ऐसा करते हैं कि इस बार जो है हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एसिटल्डिहाइड मीन्स अगर CH3CHO को हमने ट्रीट किया टोलेंस रिएजेंट के साथ AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये हो गया CH3COONH4 प्लस नेक्स्ट सिल्वर, जिसके कारण वाइट प्रिसिपिटेट आता है, ये हो गया सिल्वर प्लस ये हो गया हमारा अमोनिया प्लस ये हो गया वाटर। बैलेंस करते हैं, यहाँ जो है लेट्स सी, लेट्स पुट इट हियर 2, Ag हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये जो है 3 हो गया। ठीक है, ये जो एक्चुअल में ये क्या है, सो दिस वन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ये होता है लिगेंड, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है हमारा क्या है, तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चैप्टर है केमिस्ट्री में 12th में, उसमें हम लोग जो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस वन इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट। फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है, फेलिंग्स रिएजेंट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो फेलिंग्स रिएजेंट है, ये जो है 2 रिएजेंट मिल के बनता है। फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है, ये जो है 2 रिएजेंट मिल के बनता है। एक होता है आपका Fehling's solution A and the next one is Fehling's solution B। अब हम लोग डिस्कस करेंगे Fehling's solution A क्या होता है और Fehling's solution B क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं Fehling's solution A। Fehling's solution A, ये क्या होता है, ये होता है हमारा, दिस वन इज Fehling's solution A is copper sulfate, pentahydrate, commonly known as blue vitriol. So the chemical formula of this one is CuSO4
डॉट 5H2, ठीक है। और फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो क्या है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है along with sodium hydroxide, मीन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब ये दोनों जो है मिक्सचर जो है, अगर हम जो है दोनों का एक इक्वल मोल्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस ए लेंगे और इक्वल मोल्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस बी लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, आफ्टर दैट वी विल मूव to the next part. अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, उसके बाद जो है हम लोग फर्दर मूव करेंगे। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं इसके, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है सॉल्ट होता है टार्टेरिक एसिड का, और टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड। दिस इज COONA, this is CHOH, this one is CHOH and this is COOK। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अगर जो है हम सोडियम और पोटेशियम को हटा देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टार्टेरिक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ COOH अगर कर देते हैं और यहाँ पे भी अगर हम COOH कर देते हैं तो ये हो गया हमारा टार्टेरिक एसिड। एंड इफ दिस टू OH ions is replaced by a salt, then this is known as सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये हमारा क्या है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसमें क्या था, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो है कॉमन नेम है, इसको हम लोग रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है रोचेल सॉल्ट। अब जो है ये टार्टेरिक एसिड नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसको बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। Now again summarize this one, Fehling's reagent. So Fehling's reagent is an equimolar mixture of Fehling solution A and Fehling solution B. Fehling solution A क्या है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट
commonly known as blue vitriol. And another one is failing solution B is sodium potassium tartrate plus sodium hydroxide, and sodium potassium tartrate is what? COONA CHOH CHOH COK.4H2O, और इसको हम लोग जो है दूसरा नाम क्या देते हैं? रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये टेस्ट होता किस लिए है? ये रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट करता क्या है? तो अब हम लोग जो है देखते हैं। An organic compound, when treated with Fehling's reagent, then if reddish brown precipitate of Cu2O, copper oxide, is formed, then it confirms the presence of aliphatic aldehydes. एक चीज याद रखने वाली बात है इसमें कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वही जो हैं ये टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देता है। दिस टेस्ट इज गिवन बाय all aliphatic aldehydes. And alpha hydroxy ketones. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स do not give this test. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
अब इसका हम लोग जो है रिएक्शंस देखते हैं। दिस वन इज एल्डिहाइड। अगर इसको हम क्या किए, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किए। फेलिंग्स रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH. So if this reaction proceeds, then the product formed is RCOONA plus this is Cu2O plus this one is H2O. बैलेंस इसको कीजिए। CuOH, एक सेकेंड, ये जो है जो Cu2O जो बना, यही जो है हमें देता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और ये कंफर्म करता है कि हमारा जो एल्डिहाइड्स है वो कैसा एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है। हमने पहले भी बोला था कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो टेस्ट नहीं देते। यहाँ लिखा हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इसको बैलेंस कीजिए। टू CuOH होल ट्वाइस, क्या हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है? बैलेंस कीजिए इसको। काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कितना, इधर दो, दो चार, चार हाइड्रोजन, एक इधर 5 हो गया और एक ये हो गया हमारा 6, और इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब कितना हुआ हाइड्रोजन, चेक कीजिए। तो 3 2 जा 6, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या हमारा कॉपर बैलेंस है? कॉपर बैलेंस नहीं, हाँ कॉपर भी हमारा बैलेंस है। Cu2O कॉपर बैलेंस है, अल्काइल ग्रुप भी बैलेंस है, बैलेंस्ड है। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे C2H5CHO,
इसका क्या नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज आयुपैक नेम ऑफ दिस वन इज इथेनॉल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट के साथ जो है, सॉरी फेलिंग्स रिएजेंट के साथ जो है हम ट्रीट करते हैं। NaOH के साथ हमने ट्रीट करा और जो प्रोडक्ट बना ये हो गया, R यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा C2H5CONA। C2H5COONA प्लस Cu2O plus H2O. Let's balance this one. So this one is balanced. ये जो है ये हमें क्या देता है, तो ये हमें देता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। और ये कंफर्म कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है। गो थ्रू दिस रिएक्शंस। अब जो है इस फिगर के बारे में आते हैं। फेलिंग सॉल्यूशंस, फेलिंग्स रिएजेंट का कलर ऐसा होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब हमने टेस्ट किया तो अगर जो है कलर इस ढंग का आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड्स है वो क्या है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, तो एल्डिहाइड्स है। और कौन सा एल्डिहाइड्स है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है वो वैसा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देगा जिसके पास क्या है, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप है, वही जो है ये टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म होता क्या है, तो ये हो गया CHI3 जो होता है वो होता है आइडोफॉर्म। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें जो है टेस्ट करना है उसके साथ हम क्या करते हैं, I2 अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्रीट करते हैं। अगर हमें जो है येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया तो हम जो है कंफर्म कर देंगे कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मींस दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और इसमें क्या है, तो एक अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, इसको हमने क्या करा, I2 के साथ ट्रीट किया along with NaOH, और इसमें ऑब्वियसली अल्फा मिथाइल ग्रुप है, बिल्कुल है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसको जो है एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसके ठीक बगल वाला जहां पे फंक्शनल ग्रुप है उसके ठीक बगल वाला कार्बन एटम, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा मिथाइल ग्रुप। दिस वन इज अल्फा मिथाइल ग्रुप। और ये टेस्ट कौन देगा, ये जो है टेस्ट कौन देता है, तो ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट इज हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो इसको जो है हम रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि ये CH3 ग्रुप जो एक CH3 ग्रुप जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये जो बना, ये हमें बना CHI3 प्लस HCOONA प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। यही जो है ये हमारा क्या है, सो दिस गिव्स व्हाट, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट।
yellow colored precipitate. इसको जो है हम बैलेंस करते हैं. चलिए 3 2 जा 6, 3 NaI, sodium 3 plus 1 4, 4 sodium hydroxide, and hydrogen is how much? हाइड्रोजन एक इधर हो गया CHI3, 1 2 2 4 होना कितना चाहिए? 4 3 7 और 1 8. तो 2 इधर हो गया, तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एंड दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. ओके, सो दिस टेस्ट इज गिवन बाय व्हाट? all aldehydes and ketones, all aldehydes and ketones having alpha methyl group, having alpha methyl group. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड होगा, एसीटोन भी होगा. एसीटोन किसको कहते हैं? तो एसीटोन जो है डाई मिथाइल कीटोन, ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम क्या है? एसीटोन या फिर प्रोपेन टू ओन. इसमें भी हमारा जो है दिस वन इज व्हाट? अल्फा मिथाइल ग्रुप. तो जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप रहेगा वो जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. तो इस लेक्चर में हमने अभी तक जो है कैसे करके जो है डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज वेदर दैट इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. और इसमें जो है 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने पढ़ा. कौन कौन सा पढ़ा? तो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशंस, और तीसरा जो है आइडोफॉर्म टेस्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स अ लॉट. इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है.